वॉट डू यू मीन बाय फिजिकल पॉलिसी, क्या टैक्सेशन होती हैं, क्या टैक्सेस की टाइप होती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टोबिन टैक्स, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस फ्री इकोनॉमी सीरीज। सबसे पहले डिड यू मार्क योर अटेंडेंस, आपको कमेंट करना है प्रेजेंट सर। मैं सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ, आई विल रीड एवरी कमेंट। जल्दी से प्रेजेंट सर लिख के आइए, देन विल स्टार्ट। चलिए, फिजिकल पॉलिसी, इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई वो पढ़ाऊंगा, इन्फ्लेशन की लेक्चर आने वाली उसके बाद। फिजिकल पॉलिसी डील्स विथ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट. It can also be called budgetary policy. In broader term, it can be defined as public finance. Objectives of fiscal policy: mobilization of resources, promoting investment and growth, reduction of inequalities of income, है ना, जैसे सब्सिडीज देना, टैक्सिंग रिच एट हायर परसेंटेज, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, स्टेबिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. ये ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी के. एम आई क्लियर? चलिए, components of fiscal policy. Revenue of government. Principal source of revenue of government is taxation. ठीक है? There are 3 classifications of tax structure of any country in the world. So that it is important to understand these 3 classifications, which are as follows: direct and indirect tax, specific and ad valorem tax, progressive tax and regressive tax. डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स बताने वाला हूँ. स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम. एड वैलोरम मतलब वैल्यू के ऊपर जो लगेगा, अकॉर्डिंग टू वैल्यू. प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स, जैसे हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है. इफ़ यू आर अर्निंग मोर, यू आर पेइंग मोर टैक्स. कम कमा रहे हो तो कम पैसा दोगे. रिग्रेसिव में क्या होता है? इफ़ यू आर अर्निंग मोर, योर टैक्सेस आर लेस, है ना. हम लोग ये सिस्टम फॉलो नहीं करते. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच हैज़ टू बी पेड बाय सेम पर्सन और एंटिटी और whom it is proposed. In other words, direct tax is a tax whose burden cannot be shifted to someone else. Prominent direct taxes are income tax, corporate tax, capital gains tax. ये है direct tax. Indirect tax देखते हैं. अच्छा, पहले direct tax की और देख लेते हैं. Characteristics: direct taxes helps reduce inequalities in country as these are imposed progressively. That is, rich taxed at a higher rate than poor. An indirect tax is a tax which is imposed on someone but which is paid by someone else. In other words, it is a tax whose burden can be shifted. Taxes on goods and services are indirect taxes, जैसे GST. पहले VAT था, है ना, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं. Specific tax and ad valorem tax. Specific tax is a tax which is imposed on the basis of any specific feature, characteristics of a commodity like weight of commodity, length, width, quantity. In other words, specific tax is a tax which may be imposed on the basis of per unit, या per liter पेट्रोल डीजल हो गया, per kilo, per meter, etc. For example, tax on cigarettes in India is imposed on the basis of length of cigarette. Similarly, electricity bill is on the basis of number of units, है ना. Best example to understand specific tax is on fuel, charged by central government in form of excise duty on per liter basis. Per liter basis, ठीक है. An ad valorem tax is a tax which is imposed on the basis of value of commodity or price of commodity. And India, goods and service tax is best example of ad valorem tax as it is based on value of commodity. 18% GST on coaching fees. GST by restaurant is on total value of bill. In India, while the center imposes specific tax on fuel, state imposes VAT, value added tax on fuel. ठीक है? We are covering just basics right now. Progressive tax and regressive tax. Progressive tax is a tax which is imposed on progressive basis. अगर आप ज़्यादा कमाओगे, आपकी टैक्स ज़्यादा होने वाली है. एज सिंपल एज दैट. रिग्रेसिव टैक्स मतलब अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आपका टैक्स कम हो जाएगा. देर इज ऑल्सो अनदर क्लासिफिकेशन एज फॉलोज: सरचार्ज एंड सेस. अब ये क्या होता है? देखिए, सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स विच इज imposed on incomes above a certain level in order to make the tax structure more progressive and reduces inequalities further. For example, in India, there is surcharge of 10% on those individuals whose income is between 50 lakh to 1 crore. देखिए, there are income tax slab, उसके बावजूद एक सरचार्ज लगता है जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमा रहा है. 10% का सरचार्ज. सेस, इट इज़ अ टेम्पररी लेवाई विच इज़ इम्पोज्ड ऑन टैक्स. टैक्स के ऊपर लगेगा इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे स्वच्छ भारत सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कृषि कल्याण सेस. ठीक है.
लेफर कर्व एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्या होता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वॉज गिवन बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट आर्थर लेफर। इनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपके टैक्स रेट लो हैं, अगर आपका टैक्स रेट लो है, ठीक है, तो रेजिंग टैक्स रेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स रिवेन्यू, इंक्रीज। बट इफ यू विल इंक्रीज इट फर्दर, इफ यू विल इंक्रीज टैक्स रेट फर्दर, तो आपकी इनकम डाउन हो चले जाएगी, आपका टैक्स रिवेन्यू डाउन चले जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्टेड यू शेप में होता है pertaining to direct taxes. India's tax structure. It compromises taxes imposed by both center and states. Most of the direct taxes are imposed by center except tax on land and property which is imposed by states. As far as indirect taxes are concerned, these are imposed both by center and state. Direct taxes. The center imposes direct taxes as follows. एक बार हम इसको ये पढ़ लेते हैं, देन हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट टैक्स ऑन इनकम ऑफ कंपनीज, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये है फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स ही है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, इक्विलाइजेशन लेवी, डिजिटल टैक्स, एंजल टैक्स। इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स और इनकम टैक्स, इंडियन इनकम टैक्स स्ट्रक्चर, ये हमने जो 8 पॉइंट्स लिखे इसको हम अब डिटेल में देखने जा रहे हैं। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर दो टाइप का है, एक है ओल्ड स्ट्रक्चर, एक है न्यू स्ट्रक्चर फ्रॉम ईयर 2019-20। ओल्ड स्ट्रक्चर ये है, न्यू स्ट्रक्चर ये है, सॉरी ओल्ड फिर न्यू, ओके। अब देखिए इनकम टैक्स फर्स्ट स्लैब 2.5 से 5 लाख, फिर 5 to 10 लाख, अबव 10 लाख, ये 5% टैक्स रेट है, 20%, 30%। अब क्या आ गया, 3 to 6 लाख 5%, ये भी शायद रिवाइज हो चुका है, एक बार इसको आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू रीचेक इट। अब शायद 7.5 लाख के ऊपर लगता है टैक्स। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर एंड न्यू टैक्स स्ट्रक्चर is that those individuals who opt to pay tax under old structure are eligible to avail permissible rebates and concessions provided in income tax act, जो ओल्ड स्ट्रक्चर में रहेगा। और जो नए में है नए में है उनको दे आर नॉट एलिजिबल टू अवेल दिस रिबेट्स एंड कंसेशंस। कैसे कैसे कंसेशन, रीबेट फॉर पेइंग हाउस रेंट, रीबेट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। अब आप बोलेंगे सर ये कौन कैसे देखता है, ये चार्टेड अकाउंटेंट, आपके पिताजी या माताजी जो भी अर्निंग मेंबर है उनको पता होगा, एक बार आप उनसे पूछेंगे उनको सब पता चल जाएगा, चार्टेड अकाउंटेंट। दीज आर ऑल्सो सच, देर आर ऑल्सो सर्च चार्जेस इम्पोज दैट इज 10, 15, 25% ऑन इनकम्स बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़, 1 to 2 करोड़, 2 करोड़ प्लस। ये चीज़ हमने देखा हुआ ऊपर। इंडियाज कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर, ओल्ड स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर। अंडर ओल्ड स्ट्रक्चर देर आर 2 टैक्स रेट्स एज फॉलोज: 25% on annual income of those companies whose annual turnover is up to rupees 400 crore. 30% on companies having annual turnover over rupees 400 crore. Under new structure, there are 2 tax rates: 15% on new manufacturing companies which are set up on or after 1st October 2019 and which start their production by 31st March 2024, या फिर 22% फॉर ऑल अदर एग्जिस्टिंग कंपनीज। तो इससे हम क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी कंपनीज इस समय स्टार्ट हुई होंगी, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला होगा। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स इज दैट कंपनीज विच ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर ओल्ड स्ट्रक्चर कैन अवेल रिबेट्स कंसेशंस। वैसे ही जैसे इनकम पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर है, दीज रिबेट्स मे बी फॉर सेटिंग अप सोलर प्लांट्स, इन्वेस्टमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, सेटिंग अप यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज and such other rebates. These rebates are not permissible to companies opting for new tax structure. मतलब आप देखिए ना, न्यू में टैक्स थोड़ा सा कम है, टैक्स परसेंटेज, तो उनको कंसेशन की ज़रूरत नहीं है। देर आर ऑल्सो सर्च चार्जेस एट 7% and 12% ऑन एनुअल इनकम ऑफ कंपनीज बिटवीन 1 to 10 crore एंड अबव 10 crore. कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया इज 40%। ठीक है, इंटरवल 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, हाइड्रेट योर सेल्फ। नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम चैनल। दिस इज़ 1 word, ओके, कोई स्पेस नहीं है।
चलिए अब हम लोग आते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के ऊपर. इट इज़ इम्पोज्ड एट 15% ऑन book profits of such of companies which earn high book profits, that is profits as shown in their profit and loss account, and yet by using lawfully permissible rebates and concessions they are able to bring it down their taxable income to sometimes even zero. मतलब आप जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत कंसेशंस ले लेके आप टैक्स रेट अपना पहुंचा देते हैं जीरो, उनके ऊपर टैक्स लगेगा 15%. ठीक है, इट इज़ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. Minimum alternate tax doesn't apply to companies that opt for new tax structure. Okay. Capital gains tax. Capital gains tax is a tax which is imposed on capital gains, that is gains resulting from appreciation in the value of financial asset, shares, mutual funds, etc. or a physical asset, land, buildings, flats, etc. ठीक है. With regards to financial asset, if an investor buys share worth rupees 5 lakhs and sells them within 1 year at 8 lakhs, earning a capital gain of 3 lakhs, which will be subjected to short term capital gains tax at 15%. एक बार इसको देखिएगा. This can be revised with new budget. Okay? ये टैक्स रेट आपको रटना नहीं है. You have to recheck it. Okay? For 8 lakhs after 1 year, it will attract long term capital gains tax at 10%. Okay? इसको आपको चेक करना पड़ेगा. These two are not confirm. फरवरी में फिर कुछ आएगा नया बजट, उसमें चेंज हो सकता है. For person buys a house for rupees 3 crore, ये भी देखिए वही परसेंट वाला चीज़ है, इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं. सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स. इट इज़ अ टैक्स इम्पोज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर इन द सेकेंडरी मार्केट, एंड दिस टैक्स इज शेयर्ड इक्वली बाय द लॉयर एंड द शेयर बाय द बायर एंड सेलर. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर ए may sell shares worth rupees 8 lakhs to investor B. This transaction shall attract a tax called securities transaction tax at a very nominal rate. The amount of tax shall have to be shared equally between A and B. Equalization levy. It is a levy imposed on income earned by foreign e-commerce company from advertisements on its platform by Indian sellers. मतलब फॉरेन की ई कॉमर्स कंपनी के आप प्लेटफॉर्म पे इंडियन सेलर अपना ऐड कर रहा है, मेरा ये जूता ले लो, है ना, मेरी चप्पल ले लो, दिस एंड दैट. इट इज़ इम्पोज एट 6%. फिर से एक बार आपको बोल रहा हूँ, री चेक इट. ऑन एडवर्टीजमेंट इनकम बाय फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी. For example, an Indian company may advertise its products on the platform of Amazon, for which it may have to pay 10 lakhs to Amazon. Indian company will deduct 6%, 60,000, and pay 9,40,000 to Amazon. Digital tax. It is a tax imposed at 2% on annual revenue earned by foreign e-commerce company from sales of goods and services in Indian markets. This tax is imposed on annual revenue above rupees 2 crore. Angel tax. This tax is applicable on capital raised by startups against issue of shares, which may be in excess of fair market value, and thus this excess is treated as income from other sources and subject to angel tax at 30%. स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटलिस्ट जो आप देखते हैं शार्क टैंक, वैसी वाली चीज़ की बात कर रहे हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? द सेंटर इम्पोजेज द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट टैक्सेस अपार्ट फ्रॉम जीएसटी, विच इज इम्पोज्ड बोथ ऑन सेंटर एंड स्टेट्स. ठीक है. Excise duty, custom duty. Excise duty. It is a duty which is imposed on goods which are manufactured within the country. It has to be paid by the manufacturer before he can take his goods out of the factory premises for sale. मतलब अब फैक्ट्री प्रीमाइसेस से लेके जाओ उसके पहले ही आपको देना पड़ेगा. Excise duty is imposed by the center except excise on alcohol and narcotics which is imposed by states. इसके ऊपर states लगाएंगी, सेंटर नहीं लगाएगी. Excise duty is called CENVAT, Central Value Added Tax, because it is imposed on the basis of value added tax as explained in the following example. कैसे होता है? A shirt manufacturer may manufacture shirt worth rupees 20 lakhs for which he may buy and use cloth as an input for rupees 12 lakh. मतलब 12 लाख के सामान से वो शर्ट मैन्युफैक्चर कर लिया 20 लाख का. This case, excise duty to be paid by manufacturer shall be on the difference value, that is 20 लाख minus 12 लाख, 8 lakh पे लगेगा. If he was to pay excise duty on 20 lakhs, he would have been obliged to double tax. मतलब 12 लाख पे जब वो खरीदेगा तब टैक्स लगेगा, फिर 20 में तो डबल टैक्स. इससे अच्छा 20 माइनस 12 8 पे लगेगा. डबल टैक्स नहीं हुआ, सिंगल हुआ. कस्टम ड्यूटी. Custom duty is a duty imposed on imports and exports. However, exports are generally not subjected to custom duty by most countries as it makes exports costlier and less competitive in global markets. मतलब इंडिया से आप अपनी स्पाइसेस भेज रहे हो बाहर,
तो गवर्नमेंट आपको टैक्स नहीं करेगी। क्यों? मतलब जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्यों? बाहर आपका जो स्पाइस का रेट बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज, तो इंडिया के स्पाइसेस कम बिकेंगे, तो इसीलिए जनरली नहीं करती है गवर्नमेंट। हैंस द टर्म कस्टम ड्यूटी जनरली इंप्लाइज इंपोर्ट ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स विच आर इंपोर्टेड बाय कंट्री। कस्टम ड्यूटीज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स: बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी is that rate of import duty which is imposed on a standard rate on most goods imported into a country. This rate in India is 10%, which means that most goods which are imported may attract 10% import duty. Countervailing duty is a duty which may be imposed over and above basic custom duty on such of imported products whose price may be lower than price of similar domestic product because of subsidy given by exporting nation. मतलब आप एक्सपोर्ट करके जो ले आ रहे हो, है ना, वो इंडिया के नॉर्मल प्रोडक्ट से सस्ता पड़ रहा है। इंडिया में इंपोर्ट प्रोडक्ट ए फ्रॉम चाइना हुज प्राइस मे बी लोअर देन प्रोडक्ट ए। क्यों? चाइना गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अब सब्सिडी दे रही है तो ये प्रोडक्ट सस्ते में बिकेगा, तो इंडियन प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो, इंडियन प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव प्राइस कम हो जाएगी, मतलब कॉम्पिटिशन में वो पीछे हट जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट में इम्पोज CVD टू मेक डोमेस्टिक प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव। Anti-dumping duty is a duty which may be imposed by a country to prevent dumping. A practice whereby a country says China may deliberately send some of its goods in Indian market at a price which may be lower than price of which it is sold at China. मतलब चाइना में अगर मोबाइल बिक रहा है 10,000 का, इंडिया में वो भेज दे रहे 5,000 में। क्यों? चाइना का माल आ जाए। May be selling these goods in its home market in order to capture Indian markets. This practice is called dumping under World Trade Organization. In this case, India may impose anti-dumping duties on these products. अब आते हैं GST के ऊपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया GST was recommended by केलकर कमिटी, set up in 2004 for implementation of FRBM Act 2003। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर FRBM एक्ट क्या है? Anyone, किसी को पता है यहाँ पर? कमेंट करके बता सकता है। F से फाइनेंस होगा, इतना सबको पता होगा, थोड़ा गेस करिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस नहीं है, इट्स फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी, ऑल इंडिया GST वुड बी अ रेवोल्यूशन इन इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर सिंस इंडिपेंडेंस। सच टैक्स विल हैव सेवरल मेरिट्स एज फॉलोज। अच्छा, अब इनडायरेक्ट टैक्स आपको बता दिया है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द बेसिक्स, तो अब आप इजीली समझ पाएंगे चीज़। सच अ टैक्स विल हैव सेवरल मेरिट्स एज फॉलोज। It will bring down the enormous cascading burden of multiple indirect taxes of center and states। मतलब जो cascading burden, मतलब बहुत सारा बर्डन है, बर्डन वो हट जाएगा जो फाइनल कंज्यूमर पे आता है। तो इससे क्या होगा? ब्रिंग डाउन प्राइसेस एंड इंक्रीज कंजम्पशन एंड डिमांड। मतलब टैक्सेस इन टोटल कम हो जाएंगे, टैक्स की वैल्यू, GDP इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, GDP ग्रोथ रेट, इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, and it will integrate Indian economy with other country. Taking note of these recommendations, government set up empowered committee of state finance ministers, which were given task of traveling state to state to convince state government to adopt GST. As efforts of this committee, a blueprint placed as GST bill in both houses of parliament was prepared by the committee of all India GST incorporating feedback and suggestions of state government। स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ सजेशंस दिए, उस चीज़ को लेकर एक बिल बनाया गया, GST बिल। आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, GST एक्ट वॉज पास्ड इन August 2016। अंडर द एक्ट एंड एपेक्स, डिसीजन मेकिंग बॉडी वॉज सेटअप कॉल्ड GST काउंसिल, headed by finance minister and having finance ministers of states and UTs as its members, with over 2/3 majority in order to give federal structure to the GST council। ठीक है, सेंट्रल टैक्सेस सब्ज्यूम्ड बाय GST, कौन कौन सा ले लिया? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, CVD, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस। कस्टम ड्यूटी विल स्टिल बी कलेक्टेड प्लस IGST। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये सब हट गया। पेट्रोलियम, टोबैको, लिकर, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टिल विथ स्टेट है, ये GST में नहीं आया है। स्टेट लेवल टैक्सेस सब्ज्यूम्ड बाय GST, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, सरचार्जेस एंड सेस, स्टेट सरचार्जेस एंड सेस। ठीक है, अराउंड 98% कैंडिडेट्स फेल प्रीलिम्स। यू कैन ऑल्सो फेल योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स बोल रही है। ये एक लेक्चर है, ये एक वीडियो है,
जो आपको देखनी चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।